الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم انا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ سورہ الحدید، سورہ الحدید مدنی صورت ہے، اس میں 4 رکوعات اور 29 آیات ہیں۔ سورہ الحدید مدنی صورت ہے، اس میں 4 رکوعات اور 29 آیات ہیں۔ اس کا نام الحدید اس حوالے سے ہے کہ اس کی آیت نمبر 25 کے فقرے میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ کہ ہم نے لوہا نازل کیا، تو اسی لوہے، حدید لوہے کو کہا جاتا ہے، تو اسی کے حوالے سے اس سورت کا نام سورہ الحدید رکھا گیا ہے۔ اس سورت کو مسبحات میں بھی شامل کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں اس سورت کی ابتدا اور اس کے علاوہ کچھ اور صورتیں جو ہم آگے پڑھیں گے ان کی ابتدا میں جو لفظ آ رہا ہے جس سے سورت شروع ہو رہی ہے، اس کا جو ورڈ ہے وہ ہے سبحہ، یا سبحہ سے شروع ہو رہی ہیں یا یسبحو سے شروع ہو رہی ہیں، تو ان صورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ التغابن، یہ وہ صورتیں ہیں جن کو مسبحات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سبحہ کا مطلب ہے تسبیح کر کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ماضی کا صیغہ ہے۔ اور آگے جو ہم صورتیں کچھ اور پڑھیں گے اس کے اندر ہے یسبحو، یعنی کہ تسبیح کرتی ہیں اور کرتی رہیں گی۔ گویا بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کی تسبیح پہلے بھی کی جاتی تھی، آج بھی کی جا رہی ہے اور ہمیشہ کی جاتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسبحات میں شامل ہیں یہ صورتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سوتے وقت مسبحات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس سورہ الحدید کے اندر ایک ایسی آیت آتی ہے، آیت نمبر 3، جب ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ، اس آیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سورہ الحدید میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے، اور تم میں سے جس شخص کے دل میں شیطان کا وسوسہ آئے اس کو چاہیے کہ وہ اس آیت کو 3 مرتبہ دہرائے۔ شیطان کے وسوسے کو آنے پہ کیا پڑھنے کا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور وہ جو دوسری دعا سکھائی گئی ہے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ بھی قرآن ہی سے ثابت ہے، اور اس کے لیے بھی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کے دل میں بار بار شیطان کا وسوسہ آئے اس کو چاہیے کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 3 کو 3 مرتبہ بار بار دہرائے۔ اچھا جی، اس کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کب نازل کی، تو اس کو تھوڑا سا دھیان میں رکھیے کہ حدید لوہے کے حوالے سے اس کے اندر جو ذکر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو مدنی دور میں نازل کیا ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب کہ نبوت کو 17 سال گزر چکے ہیں، نبوت کو 17 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایمان کو ایک مرتبہ سے پھر جھنجھوڑا ہے، اور مسلمانوں کو اپنی جانی اور مالی قربانی دینے کے لیے اکسایا ہے اور موٹیویٹ کیا ہے اور پر زور اپیل کی ہے، اور اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کو بتایا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ جو فتح سے پہلے جو جنگ کریں گے یا اپنے جان اور مال سے جنگ میں حصہ ڈالیں گے ان کا درجہ بعد والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور اجر کے وعدے بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ تو یہاں پر اس
ये जो आप कह लीजिए इंफाक फी सबीलिल्लाह के हवाले से जो अपील अल्लाह ताला ने इसके अंदर की है, तो हदीद लोहे को कहा गया कि गोया जब मुसलमान जंगी साजो सामान तैयार करेंगे और अल्लाह कलमा को बुलंद करने के लिए कताल में हिस्सा लेंगे तो उनको जानों से भी और मालों से भी उसमें पार्टिसिपेट करना लाजिम है। और अल्लाह ने जो लोहा उतारा तो उस उतारने की खास वजह क्या है कि दीन को मुस्तहकम किया जाए, उसके जरिए से ज़िरहें बनाई जाएं और आर्मर्स तैयार किए जाएं और जंगी साजो सामान तैयार किया जाए ताकि आलाए कलिमा को बुलंद किया जा सके। ठीक है, तो अल्लाह ने लोहे को उतारने का रीज़न भी यहाँ पर बताया। तो अब इस मकसद के लिए सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपनी कुछ सिफात बताई हैं और ये बताना चाहा है कि ये बातें कोई आम बंदा तुम्हें नहीं पे कह रहा, ये एक निहायत ही अजीम शान हस्ती की तरफ से ये अहकामात तुम्हें दिए जा रहे हैं। ये अजीम शान हस्ती जो है उसकी तरफ से ये बातें तुम तक पहुंचाई जा रही हैं कि तुम्हें कैसे अपना जिंदगी के मामलात को लेकर चलना है। तो इसी बात को अल्लाह सुब्हाना ताला शुरू करते हैं और फरमाया जा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। तस्बीह की है अल्लाह की, मा फिस समावाति जो कुछ भी आसमानों में है और जमीन में है, यानी हर चीज ने अल्लाह की तस्बीह की है जो आसमानों में है और जो जमीन में है। कैसे तस्बीह करते हैं, क्या उनका तरीका होता है? हदीस में आता है कुल्लु मुतीउन लिल्लाहि हुवा ज़ाकिरुन, हर चीज जो अल्लाह की अताअत कर रही है वो जिक्र कर रही है। ठीक है, हर चीज जो अल्लाह की अताअत में लगी है वो जिक्र कर रही है। और कुरान हमें बताता है कि ला यफ़क़हून तस्बीहहुम, तुम उनकी तस्बीह के तरीके नहीं जानते। हम पढ़ के आ चुके हैं सायों का दाएं बाएं गिरना झुकना, ये सब भी अल्लाह के हुजूर सिजदा रेज होना है। परिंदों का पर फैला के उड़ना, ये सिजदा रेज होना है। तो गोया अल्लाह की तस्बीह हर चीज जो अल्लाह ने बनाई है, जो जमीन में है जो आसमान में है, हमें उनकी तस्बीह के तरीके समझ में नहीं आते, लेकिन बहरहाल वो अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। क्यों? वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, क्योंकि वो जबरदस्त हिकमतों वाला है। जब हर चीज अल्लाह की तस्बीह कर रही है, अल्लाह की मखलूक अल्लाह ही की अताअत में लगी है, तो वो अल्लाह की तस्बीह कर रही है, तो फिर मैं और आप जो अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बना दिए हैं, फिर हमारा क्या रवैया होना चाहिए कि फिर हमें भी हम वक्त अल्लाह की तस्बीह में अपने आप को मसरूफ़ अमल रखना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था ना, 3 चीजें जमा करो, जिक्र करने वाली जबान, शुक्र करने वाला दिल और दीन के रास्ते में मददगार अज़वाज। तो अगर हम जबान से जिक्र नहीं भी कर रहे तो क्या हम अल्लाह की तस्बीह नहीं कर सकते? अभी मैंने आपको बताया हर वो चीज जो अल्लाह की अताअत में है वो जाकिर है, वो जिक्र कर रही है। बाथरूम में खामोश रहना भी जिक्र है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया है कि बाथरूम में जाने के बाद ज़बान से कोई बात नहीं करनी चाहिए। तो ये भी जिक्र है, हालांकि उस वक्त हमारी ज़बान कुछ नहीं बोल रही, लेकिन हम अल्लाह की अताअत कर रहे होते हैं। तो हर तरह से हर मामला करते हुए ये ध्यान रखना कि मेरे रब ने इस चीज के बारे में मुझे क्या हुक्म दिया है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका मुझे क्या तरीका बताया है। एक ताजिर कैसे जिक्र कर रहा होता है, क्या वो हर वक्त नमाजें पढ़ रहा होता है, क्या कर रहा होता है? अगर वो सच्ची और अमानतदारी से अपने नाप तोल में डंडी नहीं मार रहा, धोखा नहीं दे रहा, सही तोल रहा है, तो वो भी क्या है? जाकिर है। वो भी अल्लाह की अताअत कर रहा है, नबी की इत्तबा कर रहा है और वो जाकिर है। और वो अल्लाह की इसी तरह से तस्बीह बयान कर रहा है। ये सारे की सारी चीजें जब अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है तो मुझे और आपको भी हर वक्त अपने ज़बानों के पर जिक्र इलाही रखना है, और अगर ना हो तो फिर हमारे हर अमल अल्लाह की अताअत में जरूर सरगर्म अमल होना चाहिए। लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, वास्ते उसी के है बादशाहत आसमानों की और जमीन की। अल्लाह सुब्हाना ताला ने यहाँ पे बता दिया कि बादशाहत किसके लिए है? लहू, अल्लाह के लिए, वास्ते अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमानों की और जमीन की। तो जब हर चीज की में बादशाहत अल्लाह की है, हर चीज अल्लाह ही के लिए है, तस्बीह भी अल्लाह ही की है, बादशाहत भी अल्लाह ही की है, तो सोचने की बात यह है कि जो मेरी चीजें हैं क्या वो मेरी हैं?
जिन पे मैं कादिर हूँ या जिन पर मैं बादशाह बनी बैठी हूँ, या जो समझती हूँ कि ये मेरी मलकियत है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा कारोबार, मेरे कपड़े, मेरी ज्वेलरी, मेरी चीजें सारी, तो फिर क्या वो मेरी है? नहीं। किसकी है? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो वो नारा जो चल रहा है, ये जिस्म भी हमारा अल्लाह की अमानत है, ये भी अल्लाह की अमानत है, हमारा कुछ भी नहीं है। इस जिस्म को हमने छुपा कर भी रखना है, और ये अल्लाह ने जो अमानत दिया है, ये मेरे शौहर की अमानत है, ये मेरा जिस्म मेरी शौहर की अमानत है। वो आज नारे लग रहे हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अगर मेरी मर्जी के बगैर मेरा शौहर मेरे से ताल्लुक कायम करेगा तो वो नाउज़ुबिल्लाह मेरा रेप कर रहा है। मतलब दिमाग खराब हो गया ख़वातीन का कि ये तो अमानत ही मेरे शौहर की थी, वो जैसे चाहे मर्जी इसको इस्तेमाल करे। मैं तो अपने शौहर के लिए आई ही इसलिए थी कि वो अपनी मर्जी से और जो है वो मेरे से अब महजूज हो और मेरे से फ़ायदा उठाए। अगर वो मैं ही उसको वो फ़ायदा नहीं दूंगी तो वो जाएगा दूसरी जगहों पर जाके और मुँहमारी करेगा, और फिर मैं खुद ही रोती बैठूंगी कि जी वो मेरे हकूक मार के वो दूसरी औरतों के साथ मुँहमारी कर रहा है। आज हमारी ख़वातीन को पता नहीं क्या हो गया, ये हमारा जिस्म भी हमारी अल्लाह की अमानत है, और ये अमानत मेरी नहीं है, ये मेरे शौहर की है। ये समझ लेना चाहिए हमें अच्छी तरह से। अल्लाह ने जो हमें इतनी नेमतें दी हैं तो न मेरी नहीं है, उसको मैंने अपनी मेहनत से हासिल नहीं किया। ये जो चीज़ें आज मेरे पास आ रही हैं, जो सलाहियत है, जो खूबसूरती है, जो स्मार्टनेस है, जो दिमाग है, जो नेमतें अल्लाह ने मुझे अता फरमाई हैं, मेरा घर बार, मेरी औलाद, मेरा कारोबार, मेरी इज्जत, मेरा नाम मर्तबा, ये सब मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया है? नहीं, अल्लाह ने दिया है तो मुझे मिला है। अगर मैं चाहती तो मैं तो सांस भी अपनी मर्जी से अगला नहीं ले सकती। मुझे किस चीज के ऊपर गर्रा है कि मेरा अपना क्या है? फिर हर चीज पे बादशाहत किसकी है? अल्लाह की है। वो कुरान में आता है वहुवल काहिरु फौका इबादिही, वो अपने बंदे के ऊपर कुल चीजों का मालिक है, कुल मलकियत का मालिक अल्लाह सुब्हाना ताला है। हर बंदे के ऊपर एक मजीद बंदा है, हर बंदे के ऊपर एक मजीद बंदा। दुनिया के मामलात अगर हम देखें तो निचले तबके से ऊपर आते 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 फिर सबसे ऊपर एक बादशाह आ जाता है ना, हेड ऑफ द स्टेट आ जाता है। फिर एक दुनिया का एक बादशाह होता है जो हुक्मरानी कर रहा होता है, जैसे कि आज सुपर पावर का एक बंदा है वो पूरी दुनिया पे हुक्मरानी कर रहा है। तो हर एक के ऊपर कोई ना कोई हुक्मरान है, लेकिन आखिर जो सबसे ऊपर है उसके ऊपर भी तो फिर कोई है ना। अल्लाह ने कहा कुल चीजों पर इख्तियार किसका है? अल्लाह का। बादशाहत सिर्फ उसकी है। तभी तो हज़रत अली ने फरमाया था कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। जो मर्जी आप कर लें, दुनिया के बादशाहत हासिल कर लें, दुनिया की नेमतें हासिल कर लें, आपके ऊपर भी कोई बैठा है। तो लिहाजा जो आज मेरे पास है वो मेरा नहीं, किसका है? उस अल्लाह का है। तो गोया इंसान अगर ये सोचता है तो तकब्बुर की नफी खुद ब खुद उसके अंदर से हो जाती है, और अलहम्द के कलमात, अल्हम्दुलिल्लाह के कलमात खुद ब खुद उसकी ज़बान से निकल आते हैं। और जब अल्लाह ने ही दिया है सब कुछ तो फिर इंसान खुद ब खुद शुक्र अदा करने वाला बन जाता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है। जब देता भी अल्लाह सुब्हाना ताला है, और अगर मेरी नेमत कोई अल्लाह ने मुझसे ले ली या मेरे से कोई चीज़ छीन ली, तो फिर जब थी उसकी, दी उसने थी, चाहेगा तो ले भी लेगा। तो फिर इंसान अगर ये सोच लेता है तो उससे सब्र करना भी उसके लिए फिर आसान हो जाता है। और फिर ये जब सोच लेता है इंसान कि जब उसकी थी, जब चाही थी दे दी थी, तो दिया तो शुक्र है, लिया तो भी उसी की है, जब चाहेगा ले लेगा तो अल्लाह तेरा शुक्र है। तू चाहता तो ना देता, आज तूने ले ली, तेरी चीज थी, तेरे ले ली, तो इंसान इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन करके सब्र करता है कि अल्लाह हम भी तो तेरे हैं और हम भी पलट कर तेरी ही तरफ जाएंगे। सब्र करना भी आसान होता है, और फिर इंसान राजी व रजा रवैया अपना सकता है। ठीक है, ये छोटी सी आयत का टुकड़ा हमारी बेइंतहा चीजों की तरबियत करता है, जिक्र की तरफ लेकर जाता है, शुक्र का अदा करने वाला बनाता है, तकब्बुर की नफी करवाता है, और इंसान को सब्र करना सिखाता है। इंसान को बताता है कि ये चीज मेरी नहीं है, तो फिर अब इस चीज पर इख्तियार किसका चलेगा?
اللہ का चलेगा। और जब इंसान ये समझ लेता है तो अल्लाह की अताअत भी उसके लिए फिर आसान हो जाती है। अल्लाह ये बातें हमें समझने की और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाते हैं। अच्छा जी, बादशाहत क्यों है? युहयी व युमीत, इसलिए कि वो जिंदा भी करता है सबको और मारता भी वही है। वहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कादिर है। क्यों कादिर है? क्यों मारता है? क्यों जिंदा करता है? क्योंकि हुवल अव्वलु वल आखिर, ये उसकी सिफात है कि वो पहले भी था और बाद में भी वही होगा। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होगा तो खुदा होगा। तो वो पहले भी था और आखिर में भी वही होगा। जाहिर में भी वही है और बातिन में भी वही है। जाहिर में भी वही है और बातिन में भी वही है। नजर जो चीज आ रही है वो तो फिर भी हमें कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बिल्कुल पता नहीं होती। हमारे अंदर क्या है, किसी चीज के पीछे क्या है, कौन क्या चीज चला रहा है। जो नजर आ रहा है तो समझ लो कि वो चीज अल्लाह कर रहा है, और जो नहीं नजर आ रहा उसके लिए भी समझ लो कि वो अल्लाह कर रहा है। वो जाहिर में भी है, वो बातिन में भी है। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है कुल्लु शैउन हालिक इल्ला वजहहू, हर चीज हलाक हो जाएगी सिवाय रब्बे कायनात की जात के। हर चीज हलाक हो जाएगी। तो जब हर चीज फानी है, सिर्फ रब्बे कायनात की जात फानी नहीं है, तो अल्लाह ने किसी भी मखलूक के लिए बका नहीं रखी है। बका सिर्फ किसके लिए है? अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए बका है। और ये बका अल्लाह की तो रहेगी, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान को दोबारा नए सिरे से पैदा करके फिर उसको अबदी बका अता फरमानी है लेटर ऑन। ठीक है, तो अल्लाह ने यहाँ कह दिया कि अव्वल में भी था, आखिर में भी है। गोया ये जो दुनिया का निजाम चल रहा है, इसमें तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने फना नहीं होना, लेकिन बाकी सब चीजों ने फना हो जाना है। आखिरी जात अल्लाह की रहेगी, लेकिन जब नए सिरे से अल्लाह ताला पैदा करेगा तो इंसान को फिर अबदी हयात देकर अल्लाह सुब्हाना ताला उसको बका अता फरमाएंगे। ठीक है, और इंसान जाहिर में, अल्लाह जाहिर में भी है और बातिन में भी है। वह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम, और वो हर चीज का इल्म रखने वाला है। हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, वो ज़ात है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में बनाया, फिर वो अपने अर्श पर मुस्तवी हो गया। यअलमु मा यलिजु फिल अर्दी व मा यखरुजु मिन्हा, वो जानता है जो ज़मीन के नीचे अंदर है, ज़मीन के अंदर बोया जाता है और जो उसमें से निकलता है। ज़मीन के अंदर जी क्या चीज़ें बोई जाती हैं जो अल्लाह के इल्म में है? मुर्गे दफनाए जाते हैं, बीज बोए जाते हैं, खजाने दफनाए जाते हैं। जो चीजें जमीन के अंदर जाती हैं, पानी जाता है, बारिश का पानी है, जज्ब हो जाता है, ऊपर से आ रहा है पहाड़ों से, कहाँ कहाँ पानी रस रस के नीचे जमीन के अंदर जाता है। अल्लाह को सब मालूम है कौन सी जमीन में लावा पक रहा है, कौन सी जमीन में चश्मे फुटाएंगे, ये अल्लाह को मालूम है। जो जमीन के अंदर जा रहा है वो उस जात के इल्म में है, और जो यखरुजु मिन्हा, जो उसमें से निकलता है, वो भी उसके इल्म में है। क्या निकलता है जी जमीन के नीचे अंदर से? जमीन के अंदर से नबातात निकलते हैं, पौधे निकलते हैं, फिर उस जमीन के अंदर से चश्मे फूट आते हैं, जमीन के अंदर से खजाने दफीने निकल आते हैं। कितनी चीजें हैं जो जमीन के अंदर से निकलती हैं। फिर वो हीरे निकलते हैं, मादनियात निकलते हैं, कितना कुछ है जमीन के अंदर से निकलने वाला। वो रब जानता है उसने जमीन के खजाने कौन कौन सी जगह पे कहाँ कहाँ रखे हैं और कब उनको निकालना है, वो रब निकाल भी देता है। वमा यंज़िलु मिनस समाई, और वो ये भी जानता है जो आसमान से नाजिल किया जाता है। वमा यअरुजु फीहा, और जो आसमान में चढ़ता है। आसमान से क्या चीजें उतरती हैं जनाब? आसमान से बारिश उतरती है, वेरी गुड, बर्फ उतरती है, ज़ालाबारी होती है, हवाएं आती हैं, टॉर्नेडोज आते हैं, हरिकेन्स आते हैं। फिर इसके अलावा आसमान से और फरिश्ते उतरते हैं अहकामात लेकर अल्लाह ताला के। इसके अलावा आसमान में चढ़ता क्या है? वेरी गुड, आसमान में चढ़ती है दुआएं, आसमान में चढ़ते हैं फरिश्ते हमारे अमाल नामे लेकर, आसमान में चढ़ती हैं हमारी रूहें, आसमान में चढ़ते हैं हमारे अमाल नामे। ये सब कुछ आसमान में चढ़ता है। जो हो रहा है वो सब अल्लाह तक पहुंचता है। हर चीज से वो वाकिफ है। अल्लाह ताला फरमाता है वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम,
وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو. وہ اتنی ساری چیزوں کو علم رکھنے والا، اسی لیے تو اللہ کو علیم کہا جاتا ہے. ایک ذات، ایک ہستی ہر چیز کا علم بھی رکھ رہا ہے، اور اس کے باوجود وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جدھر بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تم 7 سمندر پار چلے جاؤ، زمین یہ سمندر کی گہرائیوں میں، تہوں میں چلے جاؤ، تم کسی غار میں جا کے چھپ جاؤ، تم جو ہے اسپیس شٹل میں بیٹھ کے خلا میں پہنچ جاؤ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جدھر بھی ہوگے اللہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور نہ صرف ہوتا ہے بلکہ جو تم عمل کر رہے ہوتے ہو نا وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم 7 پردوں میں چھپ کر بیٹھ کے اور ایک بند کمرے میں رات کی تاریکی میں بھی جو کر رہے ہوں گے نا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤ. لہذا لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی. تو کوئی ہے ایسی ہستی جو ان ساری کی ساری صفات کا حامل ہو؟ صرف اور صرف اللہ. اسی لیے بادشاہت پوری دنیا پر صرف اللہ کی چلتی ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور طرف اللہ ہی کے تمام معاملات پلٹائے جائیں گے. اللہ ہی کی طرف جب معاملات پلٹائے جائیں گے تو تم بھی تو اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہو، تمہیں بھی پلٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. تو جب اللہ کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہی ہے اور تم نے اس کا سامنا کرنا ہی ہے، تو پھر آج اس تقویٰ کو اپنے اندر لے کر آ جاؤ اور اس کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اپنے اندر رکھ کر زندگی کو ایسے گزارو کہ جیسے وہ نماز میں کیفیت آتی ہے نا کہ تو ایسے نماز پڑھ کے تو رب کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ نہیں تو تیرا رب تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. خود بخود انسان کی عبادت کے اندر احسان کا رویہ شروع ہو جائے گا. اللہ کے نبی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا تھا. تو جب پلٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے تو مومن کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ 5 وقت اللہ سے ملاقات کی تیاری کرتے ہیں. اور وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ یظنون انہم ملاقو ربہم، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں. تو ہر چیز پہ بادشاہت اللہ کی ہے. ہمیں بھی اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. وہ ہمارے ہر اعمال کو دیکھ رہا ہے، اس پر نگران ہے. اس کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. جو اللہ نے اتنی ایچی بیچی گنوا دی نا، جو زمین میں جاتا ہے، جو نکلتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے، جو اس میں چڑھتا ہے، جب ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے تو پھر میں بھی اللہ کی نگاہ میں ہوں. ہر وقت ہر جگہ وہ میرے ساتھ ہے. اس کی نگاہ میں ہوں میں، اور میرے ہر عمل پر وہ جو ہے وہ اس کے بارے میں وہ خبیر ہے. تو اللہ اپنے اعمال کی اصلاح کرنا پھر کتنا ضروری ہے. یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن کے اندر. اور وہ یولج النہار فی اللیل، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات کے اندر. وہو علیم بذات الصدور، اور وہ سینوں کے اندر جو راز ہیں وہ تو ان تک کو جانتا ہے. تمہارے اندر دل کے رازوں کو وہ واقف ہے، وہ ان کو جاننے والا ہے. اگر آج تمہاری زندگی میں کچھ اندھیرے آئے ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں، فکر کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ رات کے اندر دن کو داخل کر دیتا ہے. اگر تمہاری زندگی میں آج رات آئی ہوئی ہے، تمہاری زندگی میں ڈپریشنز کے اندھیرے آئے ہوئے ہیں، تم اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہو، اور گمراہیوں کے اندھیروں میں، شرک کے اندھیروں میں، بدعت و ظلم اور زیادتیوں کے اندھیروں میں ہو، ٹینشنز میں ہو، ڈپریشنز میں، اینزائٹیز کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہو، کوئی بات نہیں. وہ رب ایسا ہے کہ وہ رات میں دن کو داخل کر کے رہتا ہے. اس کی طرف آ کے تو دیکھو، اس کی طرف آ کے تو دیکھو، اس کی طرف انابت کر کے تو دیکھو. یہ جو نور اس نے تمہاری زندگی میں دیا ہوا ہے، یہ نور تمہاری زندگیوں کے اندھیروں میں اجالا لے کر آئے گا. جب دنیا کے اندھیروں کو دور کرتا ہے، ہر رات جاتی ہے اور دن آتا ہے، ہر دن جاتا ہے اور رات آتی ہے، تو یہ مجھے اور آپ کو پیغام دیتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندھیرے بھی دور ہوں گے، اس کے اندر بھی روشنی اور اجالے ضرور آئیں گے. اللہ ہمارے سینوں کے راز بھی جانتا ہے. لہٰذا سینوں کے اصلاح کی ضرورت ہے. دلوں کا تزکیہ کرو، دلوں کو صاف کرو، اپنے دل کے اندر سے
ہر بغض برائی بیماری کو نکال کر اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھو اور اللہ سے ملاقات کی تیاری کرو. اللہ تعالیٰ خود بخود تمہارے دلوں کے اندھیرے، تمہاری زندگیوں کے اندھیرے دور کر تمہیں روشنی میں لے کر آ جائے گا. اللہ ہم سب کی زندگیوں کے اندھیرے دور کر کے ہمیں قرآن کا نور عطا فرما دے. اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ ہمارے دلوں کو نور بنا دے. اللہ ہماری بصارت میں نور بھر دے. اللہ ہماری سماعت میں نور بھر دے. اللہ ہمارے جسم میں نور بھر دے. ہمارے بالوں میں، ہماری ہڈیوں میں، ہمارے گوشت پوست میں، ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر جگہ نور بھر کے اللہ ہمیں نور ہی نور کا پیکر بنا دے کہ لوگ ہم سے روشنیاں حاصل کر کے اپنی زندگی کے اندھیروں کو دور کر کے اپنی زندگیوں میں اجالے لانے والے بن جائیں. اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اس کام کے لیے چن لے. اب مومنوں کو مخاطب کر کے ایک چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، آمنو باللہ ورسلہ. ایمان لانے والوں کو مخاطب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے لوگوں، جو سٹارٹنگ ایسے نہیں ہے کہ یہ ایمان والوں تم مخاطب نہیں کیا جا رہا، بلکہ کہا جا رہا ہے یہ مدنی دور کی صورت ہے. یاد کر لیجئے مدنی دور کے اندر مدینہ میں مسلمان ہی تھے یا کچھ یہودی تھے. یہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب نبوت کے 17 سال گزر چکے ہیں اور بہت زیادہ ٹائم گزر چکا ہے. یہ صلح حدیبیہ ابھی ہونی ہے اور یہ سارے کے سارے معاملات جنگوں کے چل رہے ہیں اور مومنوں کو مخاطب کر کے ان کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ آمنو باللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. تو کیا وہ چنے ہوئے ایمان والے نہیں تھے جو مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے؟ کیا وہ مدینہ کے ایمان والے لوگ جنہوں نے سابقون الاولون بن کے اسلام قبول کیا تھا، کیا وہ ایمان والے نہیں تھے؟ وہ ایمان والے تھے، لیکن ان کو بھی مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آمنو باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تو گویا اللہ اور اس کے رسول پر صرف منہ سے ایمان نہیں لانا کہہ کر، اس کے لیے کچھ کر کے دکھانا ہے. اور وہ جو کر کے دکھانا ہے اصل وہ ایمان لانا ہے جو آگے یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے. اور وہ کیا کر کے دکھانا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، ان چیزوں میں سے خرچ کرو جس پر اللہ نے تم کو خلیفہ بنایا ہے. جو چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ان چیزوں کو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے استعمال کرو. عام بھلائی کے کاموں پہ خرچ نہیں کرنا. کیا خرچ کرنا ہے؟ وہ چیزیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، ان جو اللہ نے تمہیں جن کا خلیفہ بنایا ہے یا تمہارے سپرد کیا ہے، مال کیا ہے، تمہاری اولادیں کی ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہے، تمہارا جسم دیا ہے، اس کو کیا کرو گے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ان باتوں کو اللہ کے لیے خرچ کرو. اصل میں ہوا یہ تھا کہ بہت سارے مسلمان کھاتے پیتے ایسے مدینہ میں موجود تھے جو تماشائی بن کر دیکھ رہے تھے اور جنگوں میں شامل نہیں ہو رہے تھے. تو اللہ نے کہا کہ تم سچے مومن بنو، جو کہہ رہے ہو تو کر کے دکھاؤ. جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اپنے جانوں میں ساتھ بھی اور مالوں کے ساتھ بھی. اور اللہ نے کہہ دیا تھا نا کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال جنت کے بدلے خریدے ہیں. تو گویا مومن اپنی جان اور مال سے جنت کے سودے کرتا ہے. یہ جان اور یہ مال جو اللہ نے جس کا خلیفہ ہمیں بنایا ہے، ہمارا اختیار اس پر نہیں ہے، بلکہ یہ کس کے لیے خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں. اللہ نے کہا خرچ کرو اس میں سے. فَالَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے، منکم تم میں سے ایمان لائیں گے، وَأَنفِقُوا اور خرچ کریں گے، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ان کے لیے بڑا اجر ہوگا. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور تمہارے لیے کیا ہے، یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لے کر آ رہے ہیں. یعنی کون سا ایمان ہے؟ وہ تو منہ سے کہہ رہے تھے ہم ایمان لائیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ اور تمہیں رسول پکار رہا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ کہ تم اپنے رب کے اوپر ایمان لے کر آؤ. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اور یقیناً تم سے ایک عہد بھی وہ لے چکا ہے اگر تم ایمان والے ہو، ماننے والے ہو. تو یہ رسول تمہیں بلا بھی رہا ہے اور تم سے ایک عہد بھی لے چکا ہے، تو لہٰذا اللہ پر ایمان لے کر آؤ بھائی.
تو کیا وہ ایمان نہیں لائے تھے؟ بار بار سمجھنے کی ضرورت ہے اس آیت کو، جھنجھوڑ رہی ہے یہ بار بار. گویا صرف خالی ایمان نہیں لانا تھا، اپنے اعمال سے ثابت کر کے دکھانا تھا کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں. کچھ لوگوں نے یہاں عہد کون سا لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تم تو ایک عہد بھی تم دے چکے ہو. کون سا عہد دے چکے تھے ہم؟ عہد الست. ایک تو ہم اللہ تعالیٰ سے عہد الست کر کے آئے تھے، الست بربکم قالوا بلا شہدنا، کہ تمہارا رب کون ہے؟ ہم نے کہا تھا اللہ ہمارا رب ہے. دوسرا جو مفسرین کہتے ہیں وہ شعوری عہد ہے جو انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے رب سے باندھتا ہے اسلام لانے کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اللہ نے قرآن میں اس آیت کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 7 میں آتا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو یا اس کو یاد کرو جو تم پر کی تھی. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس عہد کا جو تم نے کیا تھا، وہ پکا عہد جو تم نے اللہ سے لیا تھا. اِذْ قُلْتُمْ، جبکہ تم کہہ رہے تھے کہ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. تو گویا اللہ سے انسان شعوری طور پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ کے یہ عہد کرتا ہے کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، میں جو سنتی جاؤں گی میں اس کی اطاعت کرتی جاؤں گی. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انصار مدینہ نے جب مدینہ آنے کی دعوت دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار مدینہ سے بھی عہد لیا تھا اور انہوں نے سماع و اطاعت کا عہد دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جو بھی بیعت کر کے اسلام قبول کرتا تھا وہ سماع و اطاعت پر قائم رہنے کا عہد کرتا تھا. سماع و اطاعت کا پر قائم رہنا کیا ہوتا ہے؟ جو سنیں گے اس کو مانیں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے یہاں پہ یہی بتایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر اس طرح سے ایمان نہیں لا رہے جیسے ایمان لانا چاہیے. رسول تم کو پکار رہا ہے کہ تم اللہ پر، اپنے رب پر ایمان لاؤ. تم ایک عہد بھی دے چکے ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو پھر اپنے اس عہد کو پورا کرو. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، وہ ذات ہے جس نے نازل کیا اپنے بندے کے اوپر روشن نشانیاں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں نکال کر تاریکیوں سے روشنی میں لے کر آ جائے. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. یعنی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بار بار اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں یہ باتیں کر کے کہ تم تو عہد بھی لے چکے ہو، رسول بھی تمہیں بلا رہا ہے اس بات کے لیے کہ تم آؤ اور جان و مال سے جہاد میں خرچ کرو. تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دنیا میں چھوڑ کے جاؤ گے. یہ سب جو تمہیں دے دیا ہے، یہ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں ان کا مالک بنا دیا ہے، ان چیزوں پر اختیار دے دیا ہے. کسی کے باغات ہیں، کسی کے کاروبار ہیں، کسی کے گھر ہی گھر ہیں، کسی کی جو ہے وہ اولاد ہی اولاد ہے. اللہ نے تمہیں اتنا کچھ دنیا میں عطا فرمایا ہے، تم یہ ساری چیزیں اللہ کی راہ میں کیوں خرچ نہیں کر رہے؟ کیا تم وارثوں کے لیے چھوڑ کے جانا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا نا، خرچ کرو اس سے پہلے کہ جان لبوں پہ آ جائے اور تم یہ کہو کہ یہ فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو. اے ابن آدم، اس وقت یہ مال تیرا نہیں، اس وقت یہ مال تیرے وارثوں کا ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کیا ہوا کہ ایک مرتبہ بکری جو ہے وہ ذبح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لا کے حضرت عائشہ کو دیا اور کہا کہ اس کا گوشت تقسیم کر دینا. حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دستی پسند تھی تو ان کے لیے دستی سنبھال کے رکھ لی، باقی بکری کو جو ہے وہ تقسیم کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور آ کے پوچھا کہ عائشہ اس بکری کا کیا ہوا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شانہ بچا کے رکھا ہے، باقی ساری بکری میں نے تقسیم کر دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو کہ بکری تقسیم ہو گئی اور شانہ بچ گیا، یہ کہو کہ بکری بچ گئی ہے اور شانہ جو ہے وہ خرچ ہو گیا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کا حساب ہم نے اللہ کو دینا ہے. وہ تو ہم نے آخرت انویسٹمنٹ بینک میں جو ہے وہ اللہ کے پاس
अजर की सूरत में सिक्योर करके रख दिया है, डिपॉजिट करवा दिया है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने जितना माल हमें दुनिया में दिया है, इसको जो हम छोड़ के जाएंगे तो वो तो सिर्फ वारिसों का है, वो वारिसों के पास रहेगा, उनके काम आएगा। अगर उनके नसीब में होगा तो वो इस्तेमाल करेंगे, और उनके नसीब में नहीं होगा तो वो उनके लिए नहीं इस्तेमाल होगा। वो कहाँ जाता है, वो कहाँ जाता है? अल्लाह ताला फरमाता है वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़, विरासत मीरास सिर्फ अल्लाह के लिए। कितने माँ बाप ऐसे होते हैं कि इतना कमाते हैं, इतना उनकी जायदादें होती हैं, लेकिन उनकी औलादों को वो नसीब नहीं, खत्म हो जाते हैं, बिक जाते हैं, वो इसके पास और उसके पास, और वो औलादें जो है वो सीढ़ियों पर, दरबारों की सीढ़ियों पर भीख मांगती हुई पाई जाती है, क्योंकि विरासत मीरास अल्लाह के लिए, सब कुछ अल्लाह का है। नेक वालिदैन होंगे, नेकी के लिए आखिरत इन्वेस्टमेंट बैंक में जमा करवाएंगे, तो शायद उनके उस नेकी का अजर उनकी औलाद भी दुनिया में खा ले। लेकिन अगर वालिदैन सिर्फ दुनिया ही बनाने के चक्कर में पड़े रहेंगे ना, तो बस वो हराम का माल जहां से आ रहा था फिर वो हरामी पे खत्म होगा, वो तुम्हारी औलाद का भी नहीं रहेगा। तो लिहाजा जितना कमाओ उसको खर्च करो अल्लाह की राह में, क्योंकि सारी चीजें बेलाखिर पलट के अल्लाह ही के पास जाएंगी। तुम ये सोचते हो कि तुम्हारी पोतों के लिए, बेटों के लिए, नवासों नवासियों के लिए मैं छोड़ के चला जाऊं, बना के चला जाऊं, नहीं। ये विरासत सिर्फ और सिर्फ आसमान और जमीन की अल्लाह के लिए। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ा मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातला, तुम में से जो लोग फतह के बाद खर्च और जिहाद करेंगे वो कभी उनके बराबर नहीं हो सकते जिन्होंने फतह से पहले खर्च और जिहाद किया। ठीक है, उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बादु व क़ातलू, ये लोग हैं कि जिनका बड़ा दर्जा होगा उन लोगों से जिन्होंने, हाँ जी, फतह के और जिहाद के लिए जो खर्च किया वो बाद में खर्च किया, यानी बाद में खर्च करने वालों का अजर कम होगा, और जो पहला खर्च करेंगे उनका अजर ज्यादा होगा। क्यों जी, क्यों फतह से पहले खर्च करने वालों का अजर अल्लाह ने ज्यादा रखा है, और वो क्यों बाद वालों के जो खर्च करने वाले हैं वो बाद वालों के से ज्यादा बेहतर अल्लाह ताला ने बताया है, उनका आजम दर्जा क्यों है? क्या उन्हें फतह का नहीं ना पता था, उन्हें फतह का नहीं पता था। वेरी गुड, उन्होंने अल्लाह पे तवक्कुल किया था, उनको फतह नजर नहीं आ रही थी, उन लोगों के अंदर इखलास की बहुत ज्यादती थी। वो जो शुरू में आने वाले पायनियर्स होते हैं ना, अभी उन्होंने अपना उरूज नहीं देखा होता, अभी उन्होंने चीज के अंदर ये नहीं देखा होता कि ये चीज सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, वो अपनी पूरे एफर्ट्स डाल रहे होते हैं और अल्लाह पे तवक्कुल कर रहे होते हैं। उनके अंदर इखलास भी ज्यादा होता है और उनका अल्लाह पर तवक्कुल भी ज्यादा होता है, इसीलिए, और उनका ईमान बिल गैब बहुत मजबूत होगा, जो अल्लाह की राह में अपने जान और माल से जिहाद में हिस्सा डालेंगे। ठीक है ना, और उन इसीलिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनका अजर जो है वो बहुत ज्यादा रखा। हज़रत अबू सईद खुदरी से आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के सफ़र में हमसे फरमाया कि अनकरीब ऐसे लोग आने वाले हैं जिनके आमाल को देखकर तुम अपने आमाल को हकीर समझोगे, और उनमें से किसी के पास पहाड़ बराबर भी सोना होगा और वो सारे का सारा अल्लाह की राह में खर्च कर देगा, तो वो तुम्हारे एक रतल खर्च करने की बराबरी को भी नहीं पहुंच सकेगा। सहाबा कराम ने जो अपनी जिंदगी में दीन के लिए एक रतल भी खर्च किया था ना, अगर बाद में आने वाले अगर पहाड़ सोना भी खर्च कर देंगे तो वो सहाबा कराम के दर्जे को नहीं पहुंच सकते। साबिकून अल अव्वलून ने जो खर्च किया, चाहे वो थोड़ा ही था, उनमें इखलास बहुत था, उनका ईमान बिल गैब बहुत था, अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन बहुत था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर पायनियर्स की कदर कर रहे हैं। एक मरतबा हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अब्दुल रहमान बिन जो औफ थे उनके दरमियान आपस में झगड़ा हो गया। हजरत खालिद बिन वलीद ने 7 नबवी में, यानी तकरीबन आप कह लीजिए कि हजूर 7 नबवी मदीना का दौर है,
उसमें ईमान लेकर आए हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ है? 1190 में। और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ बिल्कुल मक्का के साबिक़ून अल-अव्वलून में शामिल थे। उनका आपस में कोई बहस हो गई, तो वो हज़रत खालिद बिन वलीद जो बहुत बाद में इस्लाम लेकर आए थे, पहुंचे वो भी सहाबी के दर्जे पर, लेकिन वो कहने लगे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कि तुम लोग अपनी पिछली खिदमत की वजह से हम पर फख्र जताते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि खुदा की कसम, अगर तुम लोग ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर लो तो इन पहलों के अमाल के बराबर नहीं पहुंच सकते। सहाबा कराम के अंदर भी डिफरेंशिएशन है। उनमें से भी जो साबिक़ून अल-अव्वलून थे वो बहरहाल साबिक़ून अल-अव्वलून थे। अल्लाह के नबी ने कहा तुम भी उनके बराबर के दर्जे पर नहीं पहुंच सकते। देखिए आप, बारिश जब होती है तो जो पहले कतरे बारिश के पड़ते हैं तो वही सबसे ज्यादा भीनी भीनी खुशबू देता है। उसके बाद जितनी मर्जी बारिश पड़ती रहे उसकी वो खुशबू नहीं आती कैसे कह के नहीं। तो बस पायनियर बनना है हमें दीन के कामों के लिए। आज हमारा लेवल, हमारा दर्जा बहरहाल वहां तक तो नहीं हो सकता, लेकिन अभी भी अल्लाह ताला के जो कामों के लिए अगर कभी पुकारा जाता है तो आगे बढ़कर हमें फस्तबिकुल खैरात करना है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें दर्जात की बुलंदियां जरूर अता फरमाएंगे। एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक बैठे थे कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए तो आके कहने लगे कि ये अबू बकर सिद्दीक के जिस्म पर जो कुर्ता है उसमें वो उनका जिस्म क्यों नजर आ रहा है, यानी कि इतना बारीक कुर्ता है कि उसमें से जिस्म से, उनका कुर्ते में से जिस्म क्यों नजर आ रहा है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर ने फतह से पहले सब कुछ मुझ पर खर्च कर दिया था। सुभान अल्लाह। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं कि अबू बकर को मेरा सलाम दे दो। यानी अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर के लिए अपना सलाम भेजा। फिर और फरमाया कि अल्लाह ताला ने सवाल किया है हज़रत अबू बकर से कि पूछो क्या इस फ़क्र पर वो अल्लाह से राजी है या नाराज है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत अबू बकर से ये सवाल किया कि अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि इस फ़क्र के ऊपर तुम अल्लाह से राजी हो कि नाराज हो, तो हज़रत अबू बकर फरमाने लगे, मैं अल्लाह से कभी नाराज हो सकता हूँ? मैं अल्लाह से कभी नाराज हो सकता हूँ? क्या मैं अल्लाह से नाराज होऊंगा? और फिर उन्होंने से कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने रब से राजी हूँ, मैं अपने रब से राजी हूँ। अगले दिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उनको ख्वाब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को आके बताया कि मुझे ख्वाब में ये खबर दी गई है कि अल्लाह भी अब अबू बकर से राजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर के किस्से पढ़े और सुने तो पता चलता है कि अकेले ही नहीं बल्कि पूरे घराने ने उनकी उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की थी जिस वक्त मुशरिकीन मक्का ने आपके ऊपर कत्ल का प्लान बना लिया था। उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी मुहैया करना, पैसे लेके चलना, सब कुछ पूरा का पूरा सामान जितना हज़रत अबू बकर के पास मौजूद था वो सब लेके जो है वो चले गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी दी, हुज़ूर ने कहा नहीं, पैसों के इवज लूंगा। पैसे दिए और सवारी ली। ये हुज़ूर की अपनी अना। अपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी उनसे लेके बाहर पहुंचाई। फिर भी हज़रत अबू बकर हिजरत के वक्त अपने घर में जितना माल था वो सब ले गए। अबू बकर के घर में आता वो अबू जहल आके हज़रत इस्मा को मारता, थप्पड़ लगाता और बताओ किधर है, बताओ क्या माल छोड़ के गया है, किधर है, आएगा कि नहीं आएगा, मुख्तलिफ किस्म की बातें। तो उनका जो हज़रत अबू बकर के वालिद थे अबू कहाफा, नाबीना थे, वो आए और आके उन्होंने हज़रत इस्मा से कहा कि तुम्हारा बाप जो है वो इसी तरह पागल हो गया और वो चला गया है, वो मोहम्मद के पीछे लग के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तुम लोग को ऐसी बेयारो मददगार किसके सहारे छोड़ के गया, ना कोई माल छोड़ के गया, ना बाप छोड़ के गया। तो हज़रत इस्मा बिन्त अबी बकर ने क्या किया, उन्होंने एक पोटली ली और उस पोटली के अंदर पत्थर डाले,
पोटली को बंद किया और अपने दादा के आगे रखा और कहा कि ये देखें, टटोल कर देखें कि हमारे अब्बा जान हमारे लिए बड़ा माल असबाब छोड़ कर गए। और वो नाबीना दादा, और उन्होंने जब टटोला तो उनको लगा कि हाँ सब पैसा ही होगा, कॉइन्स ही होंगे, अशरफिया ही होंगी, दिरहम ही होंगे, और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, माल छोड़ कर गया है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं इसने हिजरत के वक्त मुझ पर सब कुछ खर्च कर दिया था। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी इसी तरह जानों मालों से जन्नत के सौदे करने की तौफीक अता फरमाए। सिर्फ हम कहने वाले ही ना बने, करने वाले भी बन जाए। और फिर सिर्फ यहीं पर ही नहीं आता, हजरत अबू बकर ने जिस तरह से वहां पे खर्च किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में फरमाते हैं कि मैं हर एक का जिंदगी मैंने एहसान का बदला चुका दिया था, सिर्फ अबू बकर के एहसानात का बदला मैं नहीं चुका सका। इसीलिए अल्लाह ताला उनसे राजी थे और वो अल्लाह से राजी हो गए। और अल्लाह ताला ने फिर फौरन आगे से बताया कि देखो वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर एक से अच्छे अजर का वादा किया है, इसमें कोई शक नहीं। अजर दोनों को मिलेगा, वादा अल्लाह का दोनों के साथ है। लेकिन उलाइका आज़मु दरजा, उनका दर्जा बुलंद होगा, उनको अल्लाह बुलंद दर्जों पे रखेगा, उनकी फजीलत ही और है। और जाहिर है जिसका दर्जा बुलंद है उसके पास जन्नत भी अच्छी है, उसके पास जन्नत के मकामात भी बेहतरीन है। हम पढ़ के आ चुके हैं सूरह रहमान में और सूरह वाक़िया में, बेहतरीन मुक़र्रबून के लिए जन्नत अल्लाह ताला ने कैसी रखी थी और कौन से उनके आज़म दर्जे की जन्नतें उनको मिलनी है। अल्लाह ताला हमें उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, और अल्लाह जो तुम अमल करते हो उसको जानता है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसनन, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसना देगा। ये आयत हमने पहले भी पढ़ी थी सूरह बकरा के अंदर, याद है आपको? तो अल्लाह ने कहा था अल्लाह को कौन अच्छा कर्ज देगा, फयुज़ाइफ़हु लहू, बस अल्लाह उसको बढ़ा देगा उसके लिए, वलहु अजरुन करीम, और उसके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन अजर होगा। ये जब पहले आयत आई थी कि अल्लाह को कर्ज कौन देगा, तो अल्लाह सुब्हान ताला के सहाबा कराम फौरन अमली रवैये पेश करते थे। हजरत अबू दहदा उठते हैं और उठ के कहते हैं अल्लाह हमसे कर्ज मांगता है या रसूल अल्लाह, तो अल्लाह हमसे कर्ज मांगता है तो उसके बदले में हमें क्या देगा। तो अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि वो बदले में तुम्हें जन्नत देने का वादा करता है। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास 2 बाग हैं, और जो आयत आ चुकी थी कुरान पाक के अंदर कि अल्लाह को बेहतर में से दो, बेहतर में से अल्लाह की राह में खर्च करो ना। तो अल्लाह सुब्हाना ताला तो पाक है और पाक ही माल को खर्च कबूल करता है, हराम माल से तो अल्लाह ताला कबूल भी नहीं करता। अल्लाह ने कुरान में फरमाया था या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन त्वय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खर्च करो उन पाकीज़ा चीज़ों में से जो हमने तुम्हें अता फरमाए। और जब पाकीज़ा माल में से हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए हमें और ये भी बशारत दी कि जबकि तुम में से कोई अपने हलाल माल में से सदका करता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसको अपने दाएं हाथ से लेता है और उसको इतना ऐसे पालता है, ऐसे बढ़ाता है जैसे तुम अपने बछेरे को पालते हो, और पाल पाल के अल्लाह ताला बढ़ा के उसको बहुत पहाड़ के जितना बड़ा कर देता है ना। जब अल्लाह हमसे कोई चीज लेता है, देता भी वो है, चीजें उसकी, देता वो है, लेकिन फिर वो हमसे कर्ज ले लेता है। तो जब हजरत अबू दहदा से ने पूछा कि अल्लाह ताला क्या करता है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इसके बदले में जन्नत देगा। उन्होंने कहा अच्छा मेरे पास फिर 2 बाग हैं। तो अल्लाह के नबी, मैं उसमें से जो बेहतर, मैं ये दोनों बाग अल्लाह को कर्ज दे रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि नहीं, एक अपने पास रख लो और एक अल्लाह को दे दो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। फिर जो इनमें से बेहतर वाला बाग है ना, जिसमें 600 खजूरों के दरख्त थे और उसमें बाकायदा एक कुआं था और उनका घर भी था, उन्होंने आगे से कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने फलां बाग जो है वो अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, वो मैंने अल्लाह को कर्ज दे दिया। और फिर कर्ज कर देने के बाद कोई आफ्टर थॉट्स दिल में नहीं आ रही हैं कि ये क्या, ये तो मेरी इनकम होती थी और ये तो मेरा घर भी था यहाँ से, और अब मैं क्या करूँगा, मैं खाऊंगा कहाँ से, मेरा तो फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा, और मैं आगे से बच्चों को कैसे मैं ब्रॉटअप करूँगा, मैं उनकी स्कूलिंग कैसे करूँगा, मेरे कारोबार का क्या चलेगा। नहीं जी, वो तो अल्लाह को दे के डिपॉजिट करवा चुके। उनको तो मालूम था कि अल्लाह ताला ने कह दिया कि मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी लेकर आएगा अल्लाह उसका 10 गुना बढ़ा के देंगे। उनको पता था
اللہ کو یہ بھی معلوم تھا ان کے پاس 2 آیات آ چکی ہیں، 10 گنا کا وعدہ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 700 گنا کا وعدہ کیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا، قرآن پاک میں آتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کرنے کی مثال کیسی ہے؟ کمثل حبہ، کہ جیسے ایک دانہ بویا جاتا ہے، انبتت 7 سنابل، اس میں سے 7 بالیں نکل آتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بال میں 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بڑے وسیع علم والا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے تو گریجولی اخلاص کے حوالے سے ہم کو اجر کا وعدہ دے دیا۔ یضاعف لہ کیسے کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ 10 گنا تو کم سے کم، اس کے بعد 700 گنا، اس کے بعد احد پہاڑ جتنا، اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر صحیح۔ اخلاص جتنا ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ ہوگا۔ وہ اپنے سارا کا سارا باغ ہی دے کے آ جاتے ہیں اور آ کے اندر بھی اب نہیں جا رہے کہ یہ تو میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، دور سے آواز لگا کے کہتے ہیں امی دادا باہر آ جاؤ، یہ باغ میں نے اللہ کو قرض دے دیا۔ اور وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ 3 چیزیں جمع کرو، ذاکر زبان، شاکر دل اور دین کی مددگار ازواج، تو یہ دین کی مددگار بیوی بھی ایسی تھی کہ کوئی بات نہیں کی اپنے شوہر سے سلواتیں سنانے والی کہ یہ کیا اب ہم کھائیں گے کہاں سے، بچے بھوکے مر جائیں گے، ایک تو آ گئی یہاں پہ اتنے قحط آتے ہیں اور تم نے لے کے باغ میرے سے پوچھ تو لیا ہوتا، کم سے کم کام کرنے سے پہلے، کوئی ڈیسیجن لینے سے پہلے کم سے کم گھر والی سے ڈسکس تو کر لیا ہوتا۔ نہیں، ان کو پتا تھا کہ جو اللہ سے دیا ہے، اللہ کو دیا ہے، تو پھر وہ آگے سے انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ باغ اللہ نے اس کے بدلے میں جنت دینے کا وعدہ کیا ہے، تو فوراً سے کہتی ہیں ابو دادا خوب سودا کیا، بڑا نفع بخش سودا کیا ہے، اللہ میں ایسی بیویاں بنا۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے شوہروں کو ابھارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے خرچ کرنے والے ہو جائیں۔ ہم اپنی مرضی کے لیے تو ہر جگہ پہ خرچ کروا لیتے ہیں، لیکن جہاں نیکی کے معاملات آتے ہیں، جہاں دین کے راستے میں چاہیے، جہاں مجاہدین اسلام کو ضرورت ہے، جہاں دین کے لیے اللہ کلمہ کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر ہمارا خود بھی ڈاواڈول ہو جاتے ہیں اور اپنے شوہروں کو تو پہلے ہی جو ہے نا وہ اس کی ہوش کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ یہ باتیں ہمیں سمجھائے اور یہ اجر سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، جو نہیں کرتے ان کے لیے کیا ہے؟ اچھا، جو یہ خرچ کرتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں تو یہ سارے کے سارے اجر کی بات کر رہا ہے، لیکن آخرت میں کیا ہو جائے گا؟ یہ جو اجر ہوگا یہ کس صورت میں ملے گا؟ یوم تر المؤمنین والمؤمنات، اس دن یعنی قیامت کے دن تم دیکھو گے مومنوں کو اور مردوں کو اور مومن عورتوں کو۔ دیکھیے، مومن مردوں اور عورتوں دونوں کی بات کی جا رہی ہے، گویا خرچ جب مرد کرتا ہے تو اس میں اس کی عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ آج ہمارے مرد اس لیے نہیں خرچ کرتے کیونکہ بیویاں ان کو خرچ نہیں کرنے دیتی۔ آج بیویوں کے اپنے ہی نخرے جھمیلے اتنی چیزیں ہیں کہ بیچارے شوہر اپنی بیویوں کی ضرورتیں پوری کرتے رہ جاتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں گے؟ انہی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، بس کسی طرح میرا بچہ جو ہے وہ آگے پہنچ جائے، کسی طرح میری بیوی جو ہے وہ خوش ہو جائے، کسی طرح گھر میں سکون قائم ہو جائے، نہیں تو میری بیوی نے تو بس فتنے فساد کی رٹ لگا رکھنی ہے، تو وہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، ہر طرف سے بس وہ منی منٹنگ مشین بنے ہوئے ہیں، اور کولوں کی بیل کی طرح آج ہمارے گھروں کے مرد جو ہیں وہ صرف پیسہ کمانے کی لت میں پڑے ہوئے کہ نہیں؟ آج ہمیں اپنی ضروریات کو کم کر کے اپنے مردوں کو دین کے راستے میں استعمال کرنے یا خرچ کرنے کے لیے خود ابھارنا ہے، خود ہمیں ان کو لے کر جانا ہے، خود اپنی ضروریات کو گھٹانا ہے اور خود ان کو دوسری طرف لے کر جانا ہے، کیونکہ وہی جو ہم خرچ کروائیں گے اللہ کی راہ میں وہ آخرت انویسٹمنٹ بینک میں ڈپازٹ ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں کس صورت میں عطا فرمائے گا کہ تم اس دن دیکھو گے مومن مردوں کو اور عورتوں کو، یسعی نورہم، دوڑ رہا ہوگا ان کا نور، بین ایدیہم، ان کے آگے، و بایمانہم، اور ان کے دائیں جانب،
बुशराकुमुल यौमा जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु, और उनके लिए बशारत होगी। तो उनसे कहा जाएगा आज तुम्हारे लिए बशारत है। आज के दिन किस चीज की बशारत? बागात की, जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी और उनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, ये है अजीम शान कामयाबी। उनसे उस दिन कहा जाएगा कि ये तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। अब ये जन्नत में दाखिल होने से पहले, अजीम शान कामयाबी मिलने से पहले, उनका ये खर्च किया हुआ माल उनके लिए क्या बन जाएगा? नूर बन जाएगा। और यही नूर उनके आगे आगे और दाएं जानिब दौड़ रहा होगा। गोया कर्ज़े हसना देने का पहला मामला अल्लाह ने बता दिया कि ये तुम्हें वहां पर नूर की सूरत में मिल जाएगा। यही वो नूर है, जितना इखलास उतना ही नूर ज्यादा, जितना खर्च इखलास से उतना ही ज्यादा नूर के मामला होगा। ये आगे और दाएं जानिब क्यों होगा जी? नूर तो ऐसी चीज है जैसे रोशनी यहाँ पे हुई है ना, ये हमने बल्ब जलाया है, ये तो सारी जगह को रोशन कर रहा है। ये फिर एक ऐसा नूर होगा कि जिससे आगे और दाएं जानिब क्यों होगा? सीधा जाने के लिए नहीं तो आगे लेफ्ट साइड में जन्नत वाले जन्नत वाले वो रास्ता नजर। वेरी गुड, ये सही पहुंची, क्योंकि ये वो खुश नसीब होंगे जिनको इनका अमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा। तो ये अपने अमाल नामे को दाएं हाथ में पकड़े होंगे, तो सबसे ज्यादा नूर उनके राइट साइड पर होगा। ये बात नहीं कि लेफ्ट साइड पर नहीं होगा, आगे आगे और दाएं जानिब सबसे ज्यादा नूर होगा। समझ आ गई? नहीं तो कोई आपसे ये कह सकता है ना कि भाई नूर तो हर तरफ रोशनी देता है, तो इनके दाएं जानिब भी क्यों सिर्फ होगा? इसलिए कि वो अमाल नामे को दाएं हाथ में लेके आए थे ना, तो वो आगे आगे हाथ पकड़ा हुआ अमाल नामा और लेके चल रहे हैं, और वो नूर हर तरफ रोशनी तो कर रहा है, लेकिन स्पेसिफिकली वो रोशनी उनके राइट साइड पे सबसे ज्यादा होगी। तो अल्लाह ताला ये नूर स्पेशली कहां पर दे रहे हैं? पुलिस रात से गुजरने के वक्त, क्योंकि उससे पहले उनको दाएं हाथ में अमाल नामा मिल गया है। अब जब अमाल तुल गए हैं, अमाल नामे सुपुर्द हो गए हैं, पुलिस रात के लगाया जाएगा, जो कि बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, और ये जहन्नुम के ऊपर होगा। और जहन्नुम के एक सिरे से दूसरे जगह पर पहुंचने, उससे गुजर के पहुंचा जाएगा कि दूसरे सिरे पर जब पहुंचेंगे तो वहां पर क्या होगा? जन्नत का दरवाजा मौजूद होगा। ठीक है, अब इस पुल के ऊपर से गुजरने की कैफियत हर एक की डिफरेंट होगी। राइट साइड पे जिसके हाथ में आमाल नामा है, किसी का नूर तो इतना ज्यादा होगा कि वो मदीना से अदन तक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोशनी रोशनी होगी। किसी का इतना नूर होगा कि मदीना से सना तक जो है वो रोशनी। आपने फरमाया कि किसी का मुनाफिक का नूर बहुत कम होगा, और उसका नूर कहाँ तक होगा? वो सिर्फ उसके पाँव के अंगूठे तक होगा बस, क्योंकि उसमें इखलास नहीं था ना। वो कभी वो दीन की तरफ हो जाता था, कभी वो दुनिया की तरफ हो जाता था। मुज़ब्ज़बीना बैना ज़ालिक था, डावाडोल था, कभी कर लिया कभी छोड़ दिया, आसान आया तो कर लिया, मुश्किल काम आया तो छोड़ दिया। तो जब उसके अंदर इखलास नहीं था तो फिर उसका नूर भी ऐसे ही टिमटिमाता हुआ होगा। ठीक है, और वो कहाँ टिमटिमा रहा होगा? बस उसके पैर के अंगूठे के ऊपर होगा। अब वो जब चल रहा है तो जितना ज्यादा जिसका नूर, वो उतनी ही तेजी से जो है वो बिजली की सूरत से गुजर जाएंगे। कुछ बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, कुछ बिल्कुल अटक अटक के चलेंगे, और कुछ जितना नूर बुझेगा तो वो खड़े हो जाएंगे, नूर आया होगा तो चल पड़ेंगे, फिर बुझेगा तो खड़े हो जाएंगे, और फिर जहन्नुम से आंकड़े आके उनको अपने दबोच के अपने अंदर गिरा लेंगे। और इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फला मिनन नार, के जहन्नुम के नीचे सबसे निचले दर्जे में कौन भेजे जाएंगे? मुनाफिकीन डाले जाएंगे। अब ये जो नूर से उनको दिया गया है, इस नूर को पाने के बाद अब मोमिन दुआएं करेंगे, और क्या दुआ से बताइए? रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। ए अल्लाह, तू हमारे नूर को आज मुकम्मल कर दे।
रब्बना अतमिम लना नूरना, हमारे लिए हमारे नूर को मुकम्मल कर दे और हमारी बख्शिश कर दे। तू हर चीज पर कादिर है कि हमें इस जगह से खैरियत से वहां से गुजरवा देना। अल्लाह उस दिन हमारा नामा अमाल हमारे दाएं हाथ में पकड़ा दीजिएगा और हमारे अमाल के इखलास की वजह से हमें वो नूर अता फरमा दीजिएगा जिसकी वजह से हम जहन्नुम के ऊपर लगाया गया पुल सिरात आसानी से क्रॉस कर जाए। कुछ अमाल हैं इसके अलावा भी जो नूर देने वाले हैं। एक तो यहाँ पता चल रहा है फी सबीलिल्लाह खर्च करना जो है वो नूर बन जाएगा। इसके अलावा सल्लल्लाहु ने फरमाया कि अंधेरों में मस्जिदों की तरफ जाने वालों को कामिल नूर की खुशखबरी दे दो। सुबह और इशा का वक्त अंधेरे की नमाज का वक्त होता है, उस वक्त जो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता है उनको कामिल नूर की खुशखबरी दे दो। आज हम औरतें तो मस्जिद में जाके नहीं पढ़ती, लेकिन उन नमाजों को पढ़ने वालों के लिए कामिल नूर की बिशारत आई है। इंशाअल्लाह औरतें घर में पढ़ेंगी तो उनको भी कामिल नूर जरूर मिलेगा। याद रखिएगा, मुनाफिक के ऊपर फजर और इशा की नमाज भारी होती है, हुजूर ने बताया है। वो मुनाफिक जो फजर और इशा की नमाज नहीं पढ़ता था या भारी होती थी, वो उसके लिए सुस्ती करता था, तो क्या उसको नूर मिलेगा? इसीलिए उसका नूर टिमटिमा रहा होगा। समझ आ गई? अब इब्ने अबी हातिम और हाकिम में आता है कि मैं अपनी उम्मत के सालिहीन को उनके नूर से पहचानूंगा जो उनके आगे और उनके दाएं जानिब दौड़ रहा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने उम्मत के लोगों को उनके वजू के आज़ा के चमकने से पहचानूंगा। और ये वजू क्यों किया जाता है? बेसिकली नमाज के लिए ही किया जाता है। तो ये नमाज बेसिकली हमारे लिए नूर को लाने का सबब बन रही है। इसके अलावा कुरान उस दिन नूर बन जाएगा। जितना जितना कुरान होगा इंसान के अंदर उतना ही उसके लिए नूर होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बेनमाजियों के लिए ना कयामत में नूर होगा, ना ही फुरकान, ना ही बुरहान, और उनका खात्मा क़ारून, फ़िरौन, हामान और उबई बिन खल्फ के साथ किया जाएगा। इससे भी पता चल रहा है कि बेनमाजी को उस दिन नूर नहीं मिलेगा। अल्लाह हमें नमाजों की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह नमाजों को कायम करने वाला बना दे। अल्लाह हमारी औलादों को भी नमाजी बना दे और हम सब की नमाजों में खुशू पैदा करने की हमें तौफीक अता फरमा दे। अगर कोई जुल्म करता है तो ये जुल्म क़यामत में नूर को खींच लेने और अंधेरों को लाने का सबब बनेगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जुल्म से बचो, क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों की शक्ल में आएगा। जो जितना जालिम होगा उसके आसपास उतने ही अंधेरे होंगे, उसके पास कोई नूर नहीं होगा। जिहाद के लिए जो एक तीर भी फेंकेगा वो क़यामत के दिन जुल्मतों को मिटाने का जरिया हो जाएगा। यानी जिहाद के लिए एक तीर भी फेंकना। क्या हमने अब जाके सरहदों पे जिहाद करना है? क्या करना है? कंटिन्यूअसली जिहाद बिन नफ्स। एक एफर्ट भी आपकी अगर हो रही है तो वो आपके लिए क़यामत के दिन जुल्मतों को मिटाने का सबब बनेगा। अल्लाह हमें उस दिन कामिल नूर अता फरमा देगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया यही तो अज़ीम शान कामयाबी। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना वल मुनाफ़िक़ाती, उस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें वो क्या कहेंगे, उनका क्या हाल होगा? वो लिल्लज़ीना आमनू, वो मोमिन लोगों से कहेंगे उन्ज़ुरूना, हमारी तरफ देखो, नक़्तबिस मिन नूरिकुम, हम तुम्हारे नूर से कुछ फायदा उठा लें, हम तुम्हारे नूर में कुछ फायदा हासिल कर लें। दुनिया में तो उन्होंने ईमान वालों से कोई नूर लेने का फायदा हासिल ही नहीं किया था। दुनिया में तो ऐसे मुनाफिक ईमान वालों का मजाक उड़ाते थे और कहते थे क्या हम इनकी तरह पागल हो जाएं, फैनेटिक हो जाएं, जो पागल हैं और ये जो फंडामेंटलिस्ट हैं, क्या हम इनकी तरह ईमान लेकर आए? उनका मजाक उड़ाते थे। उस दिन वो क्या कह रहे होंगे? हमारी तरफ देखो, हम भी तुम्हारे नूर से कुछ फायदा उठाएं। क़ील अर्जिऊ वराअकुम, उनसे कहा जाएगा पीछे हट जाओ, फल्तमिसू नूरा, और अपना नूर कहीं और तलाश करो। फज़ुरिब बैनहुम बिसूरिन लहू बाबुन, फिर उनके दरमियान एक दीवार हाइल कर दी जाएगी, लहू बाबुन, जिसके अंदर एक दरवाजा होगा। यानी कि वो आएंगे, आके ईमान वालों से कहेंगे हमें भी अपना कुछ नूर दे दो, तो
तो उनको कहा जाएगा दूर हो जाओ। उस दिन किसी का नूर फायदा नहीं देगा ना, उनको कहा जाएगा जाओ अपना जाके नूर कहीं और तलाश करो। और फिर उनके दरमियान और मोमिनों के दरमियान यानी मुनाफिकीन और मोमिनों के दरमियान एक दीवार हाइल कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाजा होगा, बातिनुहु फीहि रहमतु, जिसके उसके दरमियान मतलब पीछे बातिन में रहमत होगी अल्लाह की, वज़ाहिरु मिन क़ब्लिहिल अज़ाब, और उसके आगे क्या होगा, अजाब होगा। उसके आगे अजाब होगा, बाहर से अजाब नजर आ रहा होगा, पीछे अल्लाह की रहमत होगी। बहरहाल एक दीवार हाइल कर दी जाएगी। ये कौन सी जगह है, ये आराफ की जगह है। ये अस्हाबे आराफ है जिनका मामला बराबर है, नेकियां बुराइयां बराबर है। ये मोमिनों से नूर मांगने के लिए जाएंगे लेकिन उनको नूर नहीं दिया जाएगा। उनके और मोमिनों के दरमियान एक आड़ आ जाएगी, दीवार आ जाएगी, उसमें एक दरवाजा होगा जिसके पीछे रहमत होगी, आगे अजाब नजर आ रहा होगा। अब ये शशो पंच की हालत में है, ये ना आर है ना पार है, पता नहीं क्या मामला होना है, जहन्नुम रसीद होना है या अल्लाह की रहमत में जाना है। अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार होंगे असहाबे आराफ है, हम सूरह आराफ में इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं। ये वो लोग हैं जो अल्लाह से उसकी रहमत के उम्मीदवार होंगे और फिर आहिस्ता 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 अल्लाह की रहमत जोश में आएगी और इनका मामला भी जो है वो जहन्नुम से बचाकर इनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल होने से भी महफूज फरमाए, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ना इंतजार का, ये बहुत मुश्किल था। अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाह हमें आसान हिसाब से बगैर हिसाब के ही जन्नत में दाखिल फरमा दे। अल्लाह हमारे अंदर इखलास से अमल अता फरमा और इस इखलास को हमारे लिए नूर का बाइस बना के अल्लाह हमें हमारे लिए मामलात की आसानियां फरमा। युनादूनहुम, उनको पुकार कर कहेंगे, अलम नकुम माकुम, यानी कि वो मोमिनों को ये मुनाफिक पुकार कर कहेंगे, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे, हम तुम्हारे साथ ही उठते बैठते थे, खाना खाते थे, खेलते कूदते थे, अयाशियां करते थे, घूमने फिरने जाते थे, पार्टीज अटेंड करते थे, हम तुम्हारे साथ ही तो थे, दुनिया में हम सारे काम तुम्हारे साथ ही तो करते थे। कौलू, तुमसे कहा जाएगा, ये मोमिन जवाब देंगे, बला, हाँ हाँ तुम हमारे साथ ही थे, वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, लेकिन तुमने अपने आप को खुद ही फितने में डाला है। यानी कि तुम दुनिया की मोहब्बत में इतना पड़ गए, तुम दुनिया के फितने में इतना इन्वॉल्व हो गए, वतरब्बस्तुम, और तुमने मौत का मौका परस्ती की, तुम तो बस इंतजार में रहे कि कूट किस करवट बैठता है। हाँ, अगर कोई फायदा होगा तो मोमिनों के साथ हो जाऊंगा, अगर नुकसान होगा तो मैं दूसरों का साथ दे दूंगा। तुम तो इसी उसमें रहे, मौका परस्ती में रहे, वर्तब तुम, और तुम तो शक में रहे, वही तुम शक में पड़े रहे। मुनाफिक ऐसे ही होते हैं ना, मौका परस्त होते हैं, शक में रहते हैं, पता नहीं ये काम करेंगे तो ठीक होगा भी कि नहीं होगा, हाँ जब सारी दुनिया को फायदा पहुंचेगा तो फिर हम भी कर लेंगे। वो कभी भी पायनियर नहीं बनते। तो वो और फिर क्या हुआ, वो अपने जानों को फितने में डाल दिया, वगर्रतकुमुल अमानियु, और तुम्हारी झूठी तवक्कुआत तुम्हें फरेब देती रही, धोखे में रखी रही, हत्ता जा अमरुल्लाही, हत्ता कि आ गया हुक्म अल्लाह का, वगर्रकुम बिल्लाहिल गरूर, और आखिर वक्त आ गया, वो धोखेबाज तुम्हें आखिरी वक्त तक अल्लाह के मामले में तुम्हें धोखे देता रहा। यानी कि वो जो शैतान जो तुम्हें धोखे दे रहा था, ये दुनिया मताउल गुरूर तुम्हारे लिए बड़ी मुज़य्यन कर करके दिखा रहा था और कहता था कि हाँ जी ये कर लो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, जब सब कर रहे हैं तो तुम भी वही करो, सब लोग क्या गलत कर रहे हैं, तुम्हें तो वो फितने में डाल के, धोखे में डाल के, दुनिया के फितने में डाल के तुम्हें झूठी तवक्कुआत में लेके जाता रहा, फरेब दिखाता रहा, और तुम मुख्तलिफ तवक्कुआत वाबस्ता करके उस धोखेबाज के चुंगल में फंसते रहे और फंस के तुमने उल्टा अपने आप को फितने में डाल दिया और तुम मौका परस्ती करते रहे, शक में पड़ते रहे। तो बस ठीक है, फलयौम ला युखज़ु मिनकुम फिद्यतुन, अब बस आज के दिन उनसे तुमसे कोई फिदिया कबूल नहीं किया जाएगा, वला मिनल लज़ीना कफरू, और ना उन लोगों से फिदिया कबूल किया जाएगा जिन्होंने कुल्ला कुफ्र किया था। मअवाकुमुन नार, ठिकाना तुम्हारा आज के दिन आग है, हिया मौलाकुम, यही तुम्हारा वली है, यही तुम्हारा अब ठिकाना है, वबिअसल मसीर, और बड़ा ही बुरा ठिकाना है। यानी तुम्हारे लिए आज कोई भी
ठिकाना नहीं है सिवाय इस जहन्नुम के। तुमसे आज कोई फिदिया इससे छूटने के लिए नहीं कबूल किया जाएगा, ना तुमसे और ना ही काफिरों से। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी मिन निफाक़ी व अमली मिनर रियाई व लिसानी मिनल कज़बी व ऐनी मिनल ख़यानती। अल्लाह हमें इखलास से अमल अता फरमा, अल्लाह इबादुल्लाहिल मुखलिसीन में हमें शामिल फरमा, अल्लाह शैतान के धोखों में फंसने से हमें महफूज फरमा, अल्लाह हमें ज़ाकिर बना दे, अल्लाह हमें शाकिर बना दे। अल्लाह सुब्हान तआला शैतान के फितनों और वसवसों में फंसने से, उलझने से हम सबको और हमारी औलादों को महफूज फरमा। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान लाने वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र से पिघल जाए। अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र से खशियत में चले जाएं। वमा नज़ला मिनल हक़, और जो उस चीज के लिए खशियत में चले जाएं जो अल्लाह ने हक उनके सामने नाजिल किया है। वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लु, उन लोगों की तरह मत हो जाओ जिन्हें हमने तुमसे पहले किताब दी थी। फ़ताला अलैहिमुल अमदु, फिर एक लंबी मुद्दत उन पर गुजर गई। फ़क़सत क़ुलूबुहुम, फिर उनके दिल सख्त हो गए। कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून, और अक्सर उनमें से फासिक बने हुए। अल्लाह ताला ने कहा तुम्हें क्या हो गया, ईमान वालों के ऊपर अभी भी ऐसा वक्त नहीं आया कि अल्लाह के जिक्र से उनके दिल पिघल जाए, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की नाजिल करता हक को सुनकर उनके दिलों में अल्लाह की खशियत आ जाए। अल्लाह ने कहा उनकी तरह मत हो जाओ जो पहले जिनको किताबें दी गई थी ना, तो बहुत टाइम गुजरने के बाद उन लोगों के दिल सख्त हो गए थे, और जब दिल सख्त हो जाते हैं तो इंसान फिस्को फजूर में पड़ जाता है, तो वो भी दिल सख्त होने के बाद फासिक बन गए। तो अगर आज हम चाहते हैं कि हमारे दिल सख्त ना हो, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? इस कुरान से जुड़कर, इस कुरान के साथ जुड़कर अपने ताल्लुक को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था दिल की नरमी के लिए कसरत से कुरान पाक की तिलावत की जाए। दिल की नरमी चाहते हो तो उसके लिए कब्रिस्तान को ज़ियारत किया करो। दिल की नरमी चाहते हो तो यतीम के सर पर शफकत से हाथ फेरा जाए। ये 3 अमाल बताए दिलों की नरमी को हासिल करने के लिए। तो उसमें से एक क्या है? दिल कुरान की कसरत से तिलावत किया जाए। तो जिन लोगों ने कुरान को छोड़ दिया था, अल्लाह के अहकामात को, अल्लाह के जिक्र को छोड़ दिया था, तो उनके दिल में खशियत नहीं आती, उनके दिल उल्टा सख्त हो जाते। सूरह बकरा में याद कर लीजिए, हमने पढ़ा है कि पत्थरों में से भी कोई ऐसा होता है कि जो अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से क्या होता है, उसमें से चश्मे फूट निकलते हैं। कोई अल्लाह की खशियत से ऊपर से नीचे गिराता है, तो गोया अल्लाह की खशियत के मारे जब ये पानी निकल आता है पत्थरों के अंदर से, तो वो पत्थरों का रोना है खौफ खुदा से। आज हमारे दिल इतने सख्त हो जाते हैं कि कुरान की आयत आती है, पढ़ते हैं, गुजर जाते हैं, और हमारे दिलों में कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान पाक में कि जब वो पढ़ते हैं कुरान पाक तो उनका हाल क्या होता है? तख़शअउ मिनहुल जुलूद, उनके जिल्द के जो रोंगटे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। क्या हमारा कुरान पाक को सुनकर, क्या हमारा कुरान पाक की आयत को सुनकर और इन बातों और हकीकतों को जानकर जो अल्लाह की तरफ से हक हम तक पहुंचाई गई है, हमारे रोंगटे खड़े होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमें खशियत क़ल्ब अता फरमाए और हमें फासिक होने से महफूज फरमा के अल्लाह हमें दिलों की नरमियां अता फरमाए। इअलमू, जान लो, अल्लाह युहयिल अर्द बअद मौतिहा, कि अल्लाह ही है, बेशक अल्लाह वो जिंदा करता है जमीन को उसकी मौत के बाद। जब अल्लाह जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदगी देता है, तो फिर तुम जब मर जाओगे तो तुम्हें जिंदा करना उसके लिए मुश्किल है? जमीन को उसकी मौत के बाद अल्लाह कैसे जिंदगी देता है? बारिश। वेरी गुड। बारिश जब बरसती है तो मुर्दा पड़ी हुई जमीन में भी हरारत और जिंदगी आ जाती है, नबातात उगाते हैं, वहां पे छोटे छोटे पौधे आ जाते हैं, हरियाली हो जाती है, और कुछ नहीं तो हशरातुल अर्ज निकल आते हैं कि नहीं आते? वो मेंढक, वो केचुए, वो कभी नजर नहीं आते थे वहां पर,
बारिश के बाद सब कुछ वहां नजर आना शुरू हो जाता है। ये जिंदगी में हरारत, ये जमीन के अंदर हरारत और जिंदगी अल्लाह ताला देता है। तो जब मुर्दा जमीन को अल्लाह दे सकता है, तुम भी तो मट्टी से बने हो, तुम्हें जिंदा करना अल्लाह के लिए कौन सा मुश्किल है। क़द बय्यनल आयाति लकुमुल आयाति लअल्लकुम ताक़िलून, यकीनन बयान कर दी है हमने, खोल खोल कर वाज़ेह कर दी है हमने तुम्हारे लिए अपने आयात, शायद कि तुम अकल कर लो। अगर तुम्हारे दिल मुर्दा है तो कुरान की आयत से जुड़ जाओ। तुम्हारे मुर्दा दिलों को भी अल्लाह ताला जिंदगी और हरारत और हयात जरूर अता फरमा देगा। इन्नल मुसद्दिकीन वल मुसद्दिकाती, बेशक सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें, व अक़रज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन, और अल्लाह को अच्छा कर्ज देने वाले जो होंगे, युज़ाफ़ लहुम, अल्लाह ताला उनके लिए बढ़ा देगा उस कर्ज हसना को, अल्लाह ताला कई गुना बढ़ा देगा। वलहुम अजरुन करीम, और उनके लिए बहुत ही बेहतरीन अजर है। ये आखिरत इन्वेस्टमेंट बैंक में अल्लाह ताला ने 700 से भी ज्यादा, जिसके लिए जितना चाहता है इखलास जितना उतना बढ़ाएगा। अपना अपना मुहासबा करने की जरूरत है। सदका करने वाले मर्द भी बोले हैं, औरतें भी बोली हैं, मुहासबा कर लें हम कितना आखिरत इन्वेस्टमेंट बैंक में जमा करवा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें आखिरत इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर अल्लाह के हजूर बेहतरीन सदक़ात डिपॉजिट करने की तौफीक अता फरमाए, और उज़ाइफ लहू का मामला अल्लाह हमारे साथ भी करके हमें अज्र करीम अता फरमा दे। वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, और वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून, यही तो लोग हैं जो सिद्दीक हैं। यही तो लोग हैं जो वाकई सच्चे दिल से अल्लाह पर ईमान लाए हैं। यही इन्हीं को सिद्दीक कहा गया है, क्योंकि अपने ईमान की गवाही कैसे दे रहे हैं, अपने ईमान की सच्चाई अपने अमल से दे रहे हैं। सिद्दीक सच्चे को भी कहते हैं ना, तो ये अपने अमल की सच्चाई उस माल को खर्च करके दे रहे हैं, अपनी जानों से और मालों से जो अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, इसीलिए उनको सिद्दीक कहा गया। वशुहदाउ इंदा रब्बिहिम, और शहीद भी हैं अपने रब के नजदीक। हम कहते हैं जी बस जाके बॉर्डर पे शहीद होंगे तो बस उसी तरह मरेंगे और शहीद कहलाएंगे। अल्लाह ने कहा शहीद भी हैं, ये सिद्दीक भी हैं, शहीद भी हैं। शहीद कैसे हैं जी? शहीद का मतलब होता है गवाह, गवाही देने वाला। अपने अमल से गवाही दी थी उसने कि जो अल्लाह ने कहा है उस पर मैं ईमान लाई हूँ, और मैं अपने जानों को भी दूंगी अल्लाह की राह में और मालों को भी लगाऊंगी अल्लाह की राह में। और सिर्फ बोलता नहीं है बल्कि वो लगा के करके दिखाता है। अल्लाह ने इन लोगों को सिद्दीक भी कहा और शहीद भी कहा। अल्लाह हमें सिद्दीक भी बना दे, शहीद भी बना दे। अल्लाह हमें दीन का मुजाहिद भी बनाए, दीन का मुहाजिर भी बनाए, दीन का अंसार बनने की तौफीक भी अता फरमाए, और हमें सिद्दीक और शहीदों में भी शामिल फरमाए। लहुम अजरुहुम व नूरुहुम, उनके लिए तो उनका अजर भी है और उनका नूर भी है। ये नूर उन्हीं को मिलेगा। वल्लज़ीना कफर, और जिन लोगों ने इनकार कर दिया, वकज़्ज़बू बि आयातिना, और हमारी आयत को झुटलाया, यानी अपने अमल से झुटला दिया। उलाइका अस्हाबुल जहीम, ये लोग हैं जो आग में जाने वाले हैं। इअलमू, जान लो, अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन, ये कि दुनिया की जिंदगी तो खेल है और तमाशा और वो गफलत में डालने वाला है। वजीनतुन, और एक दूसरी जीनत है जो नहीं पसंद आने वाली चीज है। वतफाखुरुम बैनकुम, और आपस में एक दूसरे से फख्र जताना है। वतकासुरुम फिल अम्वाली वल औलाद, और एक दूसरे से माल और औलाद में कसरत लेकर जाना है। हाँ जी, बढ़ जाना। अल्लाह ने बड़ी बेहतरीन हकीकत हमें दिन जिंदगी का बता दी यहाँ पर। ये एक क्रोनोलॉजिकल टाइम लाइन ऑफ आवर लाइफ है। हमारी जिंदगी का जो एक तदरीजी अमल है हमारी जिंदगी का, वो अल्लाह ने यहाँ पर बताया है। क्या है? जान लो, इन्नमल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी क्या है? लाइब है, खेल है, खेल तमाशा है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है जब इंसान, एक बच्चा होता है ना, छोटा सा इमेच्योर सा बच्चा, तो उसके लिए दुनिया सिर्फ खेल तमाशा है। उसके पास खिलौने लाते जाओ, वो खेलता जाएगा, उसकी जिंदगी ही खेल है ना। एक खिलौना, फिर दूसरा खिलौना, फिर तीसरा खिलौना, फिर ये गेम ले आओ, फिर वो रो भी रहा होगा तो उसको रैटल पकड़ा दो,
اس کے لیے زندگی صرف اور صرف کھیل تماشا ہے. چھوٹے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں نا, جتنے کھلونے لا لا کے دیتے جائیں گے وہ خوش رہتے جائیں گے, ایسا ہی ہوتا ہے. تو جی توڑتے بھی جائیں گے, ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتی, مہنگا لا دو سستا لا دو, ان سے کوئی نہیں ان کو فرق پڑتا. ان کو آپ 1000 کا بھی لا دیں گے ان کے لیے ویسا ہی ہے, ان کو آپ 10 لاکھ کا بھی لا دیں گے وہ ویسا ہی ہے, ان کے لیے کچھ نہیں. کچھ بچے تو لا کے نا وہ ہتھوڑیاں مار مار کے اپنی ریموٹ کنٹرول گاڑیوں کو بھی توڑ دیتے ہیں, کرتے ہیں کہ نہیں؟ ان کے لیے کیا ہے, ان کے لیے زندگی صرف کھیل تماشا. ان کو دوسرے کو کھلونا پسند نہیں آ رہا تو ایک بچے نے دوسرے بچے کے کھلونے کو ہتھوڑیاں مار مار کے توڑ دیا, زمین میں پٹک. تو یہ کیا ہے, یہ بچہ انسان ایسا ہی ہوتا ہے. ایک ٹائم زندگی کا آتا ہے اور وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے لیے زندگی صرف کھیل تماشا ہے بس. اس کے بعد جب وہ تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے, تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو لہو کی زندگی کا عمل ٹائم پیریڈ شروع ہو جاتا ہے. لہو کس کو کہتے ہیں؟ غفلت میں ڈالنا. وہ غفلت میں, وہ غافل ہو جاتا ہے, وہ تھوڑی سی چیز میں اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ اسے ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی دوسری چیز لا کر دے. وہ اس سے بھی پھر اتنا زیادہ اس میں غافل ہوتا ہے کہ وہ اسے نا ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے بس میں بور ہو گیا, مجھے اب کوئی اور چیز چاہیے. اور تھوڑا سا یہ جو اور ٹائم پیریڈ ہے 5 ایئرس پلس کا, اس میں بچے ایسے ہی ہوتے ہیں. دے نیڈ ایوری تھنگ ایوری ٹائم اے نیو تھنگ. اب مجھے یہ لا کے دیں, اب مجھے یہ چاہیے, اب میرے فلاں دوست نے یہ لیا ہوا ہے, اب میری فلاں دوست نے یہ چیز اس کے پاس, مجھے یہ بھی لا دیں, میں نے یہ بھی لینا ہے, مجھے وہ بھی لینا ہے. مطلب وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ ایک چیز میں اتنا انوالو ہوتا ہے کہ پھر ایگزاسٹ ہو جاتا ہے, پھر اس کو نئی چیز چاہیے ہوتی ہے. وہ غافل ہو جاتا ہے اپنی اصل زندگی کے مقصد سے, بس وہ اسی چیز میں مگن رہتا ہے. پھر اس کے بعد وہ تھوڑا اور آگے بڑھتا ہے تو وہ اب آتا ہے ٹین ایجر کی لائف میں. یہ وہ لائف ہے, ٹائم کا پیریڈ ہے زندگی کا کہ جس کے اندر وہ زینت کے معاملے میں آ جاتا ہے. اب اس کو پہننے اوڑھنے کا شوق آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں اس سے بھی اچھی بن جاؤں, میں اس سے بھی اچھا لگوں, میں فلاں چیز بھی کروں, میں فلاں چیز بھی کروں. پھر وہ اگر موٹاپے کا شکار ہے تو وہ جم کی طرف رخ کرتا ہے, پھر وہ ڈائٹنگ بھی کرتا ہے, پھر وہ اپنے آپ کو لکس کی طرف زیادہ فوکس کرنا شروع ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ٹین ایجرز میں آ کے بچہ ہمیشہ اپنے لکس پہ فوکس کرنا شروع کرتا ہے اور زینت کی طرف ایکوائر کرنا شروع ہوتا ہے. اس کے بعد آگے اور جب پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو اب یہ وہ ٹائم ہے جب وہ سیریس ہونے لگتا ہے لائف میں. اے لیولز کا ٹائم آ گیا, اب کالج لائف ختم ہو رہی ہے, اب میں نے کس کالج میں یونیورسٹی میں جانا ہے, میرے اسٹریٹ ایز آ جائیں, میرے نمبرز اچھے آ جائیں, میں اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے, میں اچھی کوالیفیکیشن حاصل کر لوں, میں فلاں سے بھی زیادہ کر لوں, فلاں سے بھی زیادہ کر لوں. تفاخر بینکم کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر میں اس سے بھی زیادہ لے لوں, میں اس سے بھی زیادہ کر لوں, اور پھر کرنے میں بھی اب لائف کے وہ اس دور سے گزرتا ہے کہ پھر وہ اب ایک اچھے مقام پر اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے, وہ اچھی ایفرٹس کرنے کے لیے, میں فلاں سے بھی زیادہ کر لوں, فلاں سے بھی زیادہ کر لوں. پھر وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, وہ اب ایسی سٹیج میں داخل ہو جاتا ہے کہ اب اس کے لیے باقی ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں. اب وہ ایک خاص پوزیشن سٹیٹس پہ پہنچ چکا ہے. اب میں مال بھی بڑھا لوں, اپنا بزنس بھی بڑھا لوں, اب ایک گھر ہے تو 2 بنا لوں, ایک گاڑی ہے تو اس سے اچھی گاڑی لے لوں, اس سے بھی آگے سے آگے کرتا جاؤں, مال میں بھی بڑھ جاؤں, اولاد میں بھی زیادہ, میری اولاد زیادہ اچھی پڑ جائے, میری اولاد زیادہ اچھی سکسیسفل ہو جائے, میرے مال اور میرے اولاد میں تکاثر کا معاملہ آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر. اور یہ وہ ٹائم لائن ہے جس سے ہر انسان گزرتا ہے. اللہ نے بتا دیا اعلموا, جان لو, سب جان لو, انما الحیات الدنیا, یہ کہ دنیا کی زندگی تو بس اسی دور سے گزرے گی, سب کی ایسے ہی گزرے گی. اور اس ساری چیزوں کی مثال اللہ نے ایسی دی ہے کمثل غیث, جیسے کہ مثال ایک بارش. اعجب الکفار نباتہ, کفار کو اس کی نباتات بڑی اچھی لگتی ہے. جب بارش برستی ہے تو نباتات اگتی ہے, فصل اگتی ہے, اور ہر ایک کو اس کی فصل بڑی اچھی لگتی ہے. کاشتکار جو ہوتے ہیں, جو کفار ہیں, اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. ثم یہیج, پھر وہ پک جاتی ہے فصل. فتراہ مصفرا, پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ وہی
खेती और फसल जो है पकने के बाद मुस्फरन जर्द हो जाती है। पकती है खेती, जर्द हो जाती है। सुम्मा यकूनु हुतामन, फिर वो क्या हो जाती है? फिर वो भूस बन जाती है। एक खेती पकती है, अपनी एफर्ट से सब कुछ करता है इंसान जिंदगी में, एक इतने से दौर से इतने बड़े सक्सेसफुल दौर तक पहुंचता है। हर एक को अच्छा लगता है उसको देख देख के, हर एक उसको देख देख के खुश हो रहा होता है। अल्लाह की इनामात की बारिश उस पर आ रही होती है। वो दुनियादारी के चक्कर में दुनिया जहान की चीजें करना शुरू हो जाता है कि बस किसी तरह भी मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। आखिरकार वो बन जाता है, कुछ ना कुछ कर लेता है, और करने के बाद क्या होता है, जब वो खेती पक जाती है तो आफ्टर ऑल एक टाइम आता है कि वो बुढ़ापे के दौर में शुरू हो जाता है, और वही जवानी उसकी क्या हो जाती है? ढलना शुरू हो जाती है, वो जर्द हो जाती है और आखिरकार भूस बन जाती है। फिर वो किसी काम का नहीं रहता। फिर वो जो खेती तैयार हुई थी ना, वो भूस बन जाती है। अब वही शख्स जो एक जमाने में क्या था, अब बुढ़ापे में अब वो दूसरों का मोहताज हो जाता है। लोग उसको ठुड्डे मार के एक साइड पे कर देते हैं, कोई उसको अपने घर में रखना भी पसंद नहीं कर रहा होता। अल्लाह ताला ने फरमाया वफिल आखिरती अज़ाबुन शदीदुन, और आखिरत में सख्त अजाब है, व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि, लेकिन अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत भी है, व रिज़वानुन, और खुशनुदी भी है। अब ये तो मेरे और आपके ऊपर है कि हम अल्लाह के पास से कयामत में, आखिरत में अजाब लेते हैं शदीद, या फिर उसकी तरफ से मग़फ़िरत हासिल करके अल्लाह की रज़ामंदी के हकदार बनते हैं। अल्लाह ने आखिर में आयत के बता दिया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, नहीं है दुनिया की जिंदगी मगर एक धोखे का घर। तो लिहाजा क्या उसूल निकल रहा है? दुनिया में बस ऐसे रहो जैसे रास्ते का चलता मुसाफिर रहता है, ऐसा ही है। ये धोखा है, ये निरा धोखा, सिर्फ दुनिया में नहीं उलझना, ये धोखे का घर है, हमारे मकड़ी का जाला है, ये फरेब है जो हमें उलझाए हुए अपने अंदर। सब लोग इस दौर से गुजरते हैं। अब मेरे और आपके ऊपर है, हम अल्लाह की रजामंदी को आखिरत में हासिल करना चाहते हैं, अज़ाबुल शदीद हासिल करना चाहते हैं, आखिरत पे फोकस करके सारे अमाल करेंगे, अल्लाह के तक़वे और खशियत को रख के अमाल करेंगे, जानों और मालों से जन्नत के सौदे करेंगे, तो अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ रहे होंगे। इसीलिए अल्लाह ने कहा साबिक़ू इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, सबक़त ले जाओ, दौड़ ले जानी है दुनिया में, आगे बढ़ना है, फर्स्ट आने का शौक है, दुनिया कमाना चाहते हो तो अल्लाह की दौड़ में, अल्लाह के सामने सबक़त ले जाने में दौड़ो। क्यों? इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, क्योंकि अल्लाह की तरफ जब दौड़ोगे तो उसकी मग़फ़िरत को अपने लिए हासिल कर सकोगे। तो लिहाजा अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो जो तुम्हारे रब की तरफ से आनी है, और ये मग़फ़िरत हासिल करके मिलेगा क्या? वजन्नतिन, और वो बागात मिलेंगे, अर्ज़ुहा का अर्ज़िस समाई वल अर्ज़, वो जन्नतें मिलेंगी जिनका अर्ज़ ही आसमान और जमीन के बराबर है। एक जन्नत का अर्ज़, एक कपड़ा कितना लंबा होता है, हम उस कपड़े की लंबाई तो गिन नहीं सकते, अर्ज से बता देते हैं कि ये कपड़ा कितना ज्यादा होगा। चौड़ाई से हम हमेशा एक चीज को एस्टिमेट लगाते हैं, ऐसे करते हैं ना। अल्लाह ने कहा वो जन्नत जिसका तुम्हें अर्ज ही बता रहा हूं कि जमीन और आसमान के दरमियान बराबर, तो उसका सिर्फ अर्ज ही है, उस जन्नत को हासिल करने के लिए दौड़ो जो तुम्हें अल्लाह की मग़फ़िरत से मिलेगी। तो लिहाजा उसूल क्या मिल रहा है? अल्लाह से हमेशा उसकी मग़फ़िरत का सवाल करना चाहिए। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, खुश हो जाए तुम में से वो शख्स जो अपने नामाए आमाल में इस्तिग़फ़ार की कसरत को पाए। रोजाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं 100 मरतबा दिन में इस्तिग़फ़ार करता हूँ। मैंने पहले भी आप लोगों को बार बार बताया है कि 100 दफा एक दिन एक वक्त में नहीं किया जाता, तो हर नमाज के बाद 20-20 दफा इस्तिग़फ़ार करेंगे तो 100 की गिनती पूरी हो जाती है।
اللہ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ جنت ہے اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ وہ جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اللہ یہ ہمیں اپنا فضل عطا فرما دے. اللہ یہ اپنا فضل عظیم ہم کو عطا فرما کے اللہ ہمیں قیامت میں سرفروغ فرما دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین.